एंड वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। वरुण धवन को क्यों है कैसनोवा टैग से प्रॉब्लम? ऋतिक ने फाइनली क्यों किया फिल्म शुद्धि करने से इनकार? दीपिका ने अनुष्का के नो फ्रेंडशिप कमेंट पर दिया क्या क्लैरिफिकेशन? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सलमान खान अपनी किस फिल्म का बनाएंगे सीक्वल। इस वीकेंड मुंबई में हुआ एक अवार्ड फंक्शन और इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट की सारी अपडेट्स। Joining the bandwagon was another awards night of late. जहां हमें बाकी की awards night का high dose of glamour and gossip तो नहीं मिला, but still there were quite a few stars who created a stir at this event. First on this list is Priyanka Chopra, जो आई dressed in a totally desi avatar. Contrary to her appearances of late, इस awards night में Priyanka chose to give her usual unconventional styling a skip. क्योंकि चाहे वो रियलिटी शोज हो या फिर इवेंट प्रमोशंस, रिसेंटली प्रियंका दिख रही थी गोइंग ऑल quirky with her styling. But here, प्रियंका ने चूज की एक सिंपल ऑरेंज साड़ी with a thick border and left her tresses loose. Not to forget the traditional bindi which she always wears with her sarees. वैसे प्रियंका के अटायर के अलावा यहाँ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की and that was candidly posing with her brand new swanky car. ये वही कार है जिसका buzz of late काफी सुनने मिला था that Priyanka is the only heroine from B-Town to own such an expensive luxury car. But has she taken to the wheels as yet? Not really. चलाई तो नहीं है मैंने अपनी रोल्स अभी तक. I don't like driving. I prefer to be driven. From one diva to another, प्रियंका की क्लोज बारी दीपिका भी यहाँ दिखी and boy, just look at her. Deepika just doesn't stop amazing her with her styling. The diva is seen donning a very simple sequenced gown. But what makes it cool is that headgear which she's sporting quite stylishly. So I've always been styled by Anaita Shroff, you all know that. And so she's put the look together. We've liked the gown. She had this idea of doing this whole Mang Tika look, keeping it a little ethnic and ethereal. So hopefully it works. And ask her whose performance is she most excited about, Deepika's quick to reply. I'm looking forward to Ranveer's performance, I'm looking forward to Akshay's performance and I'm looking forward to meeting Shahrukh. Deepika के बाद आए यहाँ बाकी stars की बात करें तो we spotted Yami Gautam bringing some sunshine in the glitzy night. Wearing a bright yellow gown, Yami looked quite cute in it. But what's up with Swara Bhaskar? What is that hideous gown all about? Anyways, moving on to other Bollywood ladies, यहाँ हमें Genelia को भी spot किया after a very long time. But surely she had a reason to come for this awards night. After all, her husband is hosting the show. I think Ritesh and Abhishek have this great chemistry. I think it's better than me and Ritesh also at times. But I think that's what shows, and I think that's why the award show will be exciting. It's my first award show of the year, in fact, that I'm attending, and it honestly has a lot to do with Ritesh and Abhishek being there. Also spotted was Vani Kapoor draped in black and white and looking quite classy. Ellie Avram again spotting Indian avatar, which doesn't impress us much. Sonali Bendre looking absolutely gorgeous. Amrita Rao looking sleek in that royal blue gown. Sonal Chauhan showing off the sexy cuts of her black gown. और बात करें बॉलीवुड के हंक्स की तो यहाँ दिखे फरहान अख्तर, अली जाफर, फरदीन खान टू नेम अ फ्यू. इन ऑल ये अवार्ड्स नाइट रेड कार्पेट के मीटर पर रही काफी हो-हम. बट अंदर इस नाइट में कितना मजा आया ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अनुष्का शर्मा का कहना है कि दीपिका उनकी दोस्त नहीं है. वेल, अनुष्का के इस कमेंट पर क्या है दीपिका का रिएक्शन? चलिए खुद दीपिका से ही जानते हैं. दीपिका पादुकोण ने मीडिया के सामने कहा था कि वो और अनुष्का दोस्त हैं. दीपिका ने कहा था कि उनकी और अनुष्का की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है. लेकिन अब मीडिया में आया अनुष्का का एक कमेंट.
और कमेंट ये कि दीपिका नहीं है उनकी दोस्त। जी हाँ, सबको हैरान कर देने वाला ये कमेंट अनुष्का शर्मा ने ही दिया है। अनुष्का का कहना है कि दीपिका पादुकोण उनकी दोस्त नहीं है। ऐसे में दीपिका का क्या कहना है? वेल, मीडिया ने खुद दीपिका से ही पूछ लिया जब वो मिली एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में। This is not coffee with Karan, so I won't answer that question. Okay, thank you very much. Thank you. देखिए तो सही, दीपिका ने कैसे इजीली क्वेश्चन को किया अवॉइड। This is not coffee with Karan, so I won't answer that Okay, question. thank you very much. Thank you. वेल, दीपिका का कहना है कि ये कॉफी विद करण शो नहीं है, इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट सीजन तक का इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ आप उन्हें फ्रेंड मानती हैं, वहीं उनका आपको फ्रेंड न मानना सबके लिए शॉक कर देने वाला है। This is not coffee with Karan, so I won't answer that Okay, question. thank you very much. Thank you. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। ऋतिक रोशन ने करण जौहर की फिल्म शुद्धि करने से कर दिया इनकार। आखिर किस बात से ऋतिक हुए नाराज? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। फिल्म शुद्धि से ऋतिक ने किया वॉकआउट। करण जौहर की मेगा बजट को नहीं करेंगे ऋतिक रोशन। ऋतिक के साथ साथ करीना भी अब फिल्म का पार्ट नहीं। करण जौहर ने जैसे ही अपनी मेगा बजट फिल्म शुद्धि का अनाउंसमेंट किया, वैसे ही ये भी रिवील कर दिया था कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और करीना कपूर लीड स्टार्स होंगे। लेकिन सबसे पहले आई करीना की फिल्म से बाहर जाने की खबर। वेल, करीना और करण जौहर के बीच फ्रेंड से भी ज्यादा क्लोजनेस का रिलेशनशिप है। करीना करण को एज अ ब्रदर मानती है, लेकिन फिर भी करीना ने ये फिल्म नहीं की। कभी खबर आई कि करीना ने खुद ये फिल्म छोड़ दी, तो कभी खबर आई कि करण दीपिका को साइन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने करीना की जगह दीपिका को अप्रोच किया। वेल, इन खबरों में से किसी एक खबर पर कॉन्फर्मेशन आती, उससे पहले आज आ गई इनसे भी बड़ी खबर। और खबर ये है कि ऋतिक रोशन ने भी फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। मुंबई के लीडिंग डेलीज की माने तो डेट इश्यूज की वजह से अब ऋतिक करण जौहर के प्रोजेक्ट शुद्धि का पार्ट नहीं है। रूमर बाजार की माने तो ऋतिक के बाहर चले जाने के बाद अब करण जौहर उनकी जगह रणवीर सिंह को कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वेल, एक दूसरा रूमर ये भी है कि रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म को कर सकते हैं। वेल, अब ऋतिक रोशन की जगह कौन इस फिल्म को करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ऋतिक और करीना अब इस फिल्म का पार्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। मूविंग ऑन, अनुराग कश्यप ने फाइनली अपने और हुमा की अलेज्ड लिंकअप को लेकर मीडिया से बात की। वेल, इतने वक्त से चुप अनुराग कश्यप को आखिर क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा? वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह Zoom आपको बताने जा रहा है। मेरे और उसके बीच में क्या है या क्या नहीं है, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी का बिजनेस नहीं है। काफी वक्त बाद अनुराग कश्यप ने मीडिया से की बातचीत। People have a certain way of looking at life. I think everybody looks at everything as black and white. काफी वक्त बाद अनुराग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बोले। हाँ, रिलेशनशिप टूट गई तो ऐसा होता, वैसा नहीं था। मेरे और उसके बीच में क्या है या क्या नहीं है, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी का बिजनेस नहीं है। मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले अनुराग कश्यप में क्यों आ गया ये चेंज? ये जानने के लिए आपको कुछ और भी जानना जरूरी है। पहले आप इन विजुअल्स को देखिए। एक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी जिस तरह मीडिया के शटर बॉक्स के सामने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर आए, जिस तरह दोनों स्माइल करके साथ पोज दे रहे थे, उससे अगले दिन मीडिया में हर तरफ हेडलाइन छप गई। कहीं अनुराग और काल्की के बीच में आए डिफरेंसेस की वजह, कहीं हुमा कुरैशी तो नहीं। वेल, जैसे ही ये न्यूज मीडिया में आई तो काल्की सबसे पहले सामने आई और अपने ट्विटर अकाउंट पर साफ लिख दिया कि उनके और अनुराग के डिफरेंसेस की वजह कोई भी प्लीज हुमा को ना बताए। काल्की तो सामने आ गई, लेकिन हाँ, अनुराग कश्यप ने कुछ भी नहीं कहा। वैसे पहले कुछ भी होता था तो अनुराग कश्यप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसके बारे में लिख देते थे, लेकिन अब उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट का अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। ऐसे में उनका और मीडिया का हुमा कुरैशी को लेकर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब सुनिए अपडेटेड खबर, और खबर यह है कि अनुराग कश्यप ने हुमा के कहने पर मीडिया से बात की। दरअसल हुमा नहीं चाहती थी कि अनुराग कश्यप चुप रहे और मीडिया उनकी चुप्पी का गलत मतलब निकाले, इसलिए उन्होंने अनुराग कश्यप से रिक्वेस्ट की कि वो मीडिया से बात करें और अपना वर्जन क्लियर करें। I've been here 20 years to know what to ignore. But what affects you is when person involved gets affected.
when you say everything there is to say, and when Kalki says clearly and Uma says clearly and I say things clearly, but people insist on dragging it on only because they need to sell advertising space or they need to sell their newspaper. इसीलिए अनुराग फाइनली सामने आए और मीडिया फ्रेंडली बने। बता दें कि अनुराग और काल्की अब एक साथ नहीं रहते। दोनों ने अपने सेपरेशन को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया था। We issued a statement and that's it. I don't think it's anybody's business to know what's happening in my personal life. We issued a joint statement and I think that should end the whole kind of a लोग जो सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं करनी। हम स्टेटमेंट रिलीज कर चुके हैं ना, कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। अब दोनों साथ नहीं रहते। बता दें कि अनुराग काश्यप से सेपरेशन के बाद काल्की ने मीडिया में कहा है कि शी इज हैप्पी इन हर स्पेस एंड लाइफ। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन को कैसनोवा टैग अच्छा नहीं लगता। वरुण जो कभी रणबीर कपूर की तरह कैसनोवा बनना चाहते थे, अब खुद कैसनोवा टैग से बढ़ा रहे हैं दूरियां। आखिर क्यों? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। अपनी डेब्यू फिल्म के वक्त वरुण धवन had no qualms following Ranveer's footsteps and taking tips from him for being called the ladies' man. पर अब वरुण बिल्कुल नहीं चाहते बनना कैसनोवा। I think I have directed really like sweet boy. Ladies man, sweet boy. That's what Really? I mean that's what Like Rishte Milmilre type. हाँ, that's what I thought I had, but apparently not. But I mean, if you want to call me a Casanova, then bro. Well, लगता है looking at how Ranbir Kapoor usually फंस जाते हैं इन सारी controversies में, especially when it comes to his ladies, Varun would rather now be sweet, सीधा साधा guy. और वैसे भी उनकी दोनों co-stars इलियाना और नरगिस का कहना है कि वरुण बिल्कुल भी कैसनोवा नहीं है। I think I have directed really like sweet boy. Ladies man, sweet boy. That's what Really? I mean that's what Like Rishte Milmilre type. हाँ, that's what I thought I had, but apparently not. But I mean, if you want to call me a Casanova, then bro. Go ahead. Does he really want to comment? I just choked on my saliva. No, They both know I'm not. He's a lovely young We man. don't take him like no. No, he's not a Casanova. No, I don't not think to he's us. Casanova. I think No, he's- not at all. और वरुण भी खुद ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं बनना चाहते कैसनोवा बॉय। I think I have directed really like sweet boy. Ladies man, sweet boy. That's what Really? I mean that's what Like Rishte Milmilre type. हाँ, that's what I thought I had, but apparently not. But I mean, if you want to call me a Casanova, then bro. Well, no harm in getting all the attention from the ladies though, right Varun? But looks like Varun really behaved well on the sets of his dad's movie Main Tera Hero. Let's wait and watch in his next film. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सलमान खान और ऋतिक रोशन अब आपको नजर आएंगे एक साथ। आखिर किस फिल्म में? वॉच इन दिस रिपोर्ट। Hold on to your pulse, guys, cause very soon the hot Salman and Hrithik Roshan will be all over you. Well, इससे पहले कि आप कुछ और सोचे, हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ सिनेमा हॉल में होगा। भाई अगर सल्लू और ऋतिक जैसे हंस 4D में आएंगे, तो of course they will be all over you now. सुनने में आया है कि इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिकल 4D फिल्म में कास्ट करने के लिए सलमान और ऋतिक का नाम सामने आ रहा है। ये फिल्म एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी बना रही है जिसे पुणे की एक पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग है। लिहाजा इस फिल्म को ग्रैंड स्केल पर बनाया जाएगा और साथ काम करने के लिए ऋतिक और सलमान का नाम सामने आ रहा है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो ये पहली बार होगा जब ऋतिक और सल्लू साथ आएंगे। अब 4D में रियल कैरेक्टर्स को आप रियल लाइफ जितना पास से देख पाएंगे, तो भला इस लीथल और हॉट कॉम्बिनेशन को थिएटर्स में कैसे मिस करेंगे? फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। फरहान अख्तर ने सोनम कपूर को फिल्म रईस में किया साइन। वेल, क्या ये खबर सच है? आइए फरहान अख्तर से ही पूछते हैं। फरहान अख्तर ने शाहरुख की फिल्म के लिए किया सोनम कपूर को साइन। फरहान अख्तर रईस में सोनम कपूर को लेंगे एज अ लीड हीरोइन। फरहान अख्तर और शाहरुख खान ने सोनम कपूर को किया फाइनल। वेल, मुंबई में टैबलॉइड्स में ये खबरें काफी ज्यादा वक्त से आ रही हैं, लेकिन इन खबरों में है कितनी सच्चाई? ज़ूम ने खुद फरहान अख्तर से पूछा। Is it true that Sonam is also going to be a part of Rais and we get to see you two together? I did read about it. Or like us? No, like many things that I read that I'm hosting KBC possibly. What do you think? No, I read about it. Yes, there's many bits of news that keep coming out, which have something to do with my life, but actually have nothing to do with my life. So we'll see. I mean, that project is in kind of in a prep stage. We'll get into casting soon, and you all will know. Nothing will ever be a secret. वेल, फरहान की माने तो उन्होंने अभी फिल्म की कास्टिंग शुरू भी नहीं की है और हमारी तरह वो भी सिर्फ पेपर्स में ही पढ़ते हैं कि उन्होंने सोनम को शाहरुख के ऑपोजिट साइन कर लिया है। वैसे ये बात अलग है कि बिना पूछे बातों ही बातों में फरहान ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो KBC को होस्ट नहीं कर रहे हैं। आप भी सुनिए जरा एक बार फिर। Is it true that Sonam is also going to be a part of Rais and we get to see you two together? I did read about it. Or like us? No, like many things that I read that I'm hosting KBC possibly.
possibly. What do you say? No, I read about it. Yes, there's many bits of news that keep coming out, which have something to do with my life, but actually have nothing to do with my life. So we'll see. I mean, that project is in kind of in a prep stage. We'll get into casting soon, and you all will know. Nothing will ever be a secret. मतलब ये कि फरहान फिलहाल ना तो सोनम को कास्ट कर रहे हैं और ना ही केबीसी होस्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो वो सिर्फ कर रहे हैं शादी के साइड इफेक्ट्स को प्रमोट। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी छोटी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। इसीलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म फितूर शेल्फ हो गई है। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो आदित्य और कटरीना अभिषेक कपूर की जिस फिल्म में काम कर रहे थे उसकी शूटिंग कब शुरू होगी कोई नहीं जानता। वह फिल्म के शेल्फ होने का रियल रीजन तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फिल्म शेल्फ होने के बाद कटरीना कैफ अब अपनी डेट्स दूसरी फिल्म को देने की प्लानिंग कर रही है। Sushant Singh Rajput, who's currently shooting for Diwakar Banerjee's detective Vyomkesh Bakshi, recently partied with his friends and girlfriend Ankita Lokhande, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं Bits and Bytes में। Have a look. Well, mustache look में सुशांत पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी डिफरेंट, isn't it? कटरीना कैफ ने ऋतिक रोशन के साथ फाइनली फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग ज्वाइन कर ली है और ये है कटरीना और ऋतिक की फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग की पहली तस्वीर। वेल, आपको बता दें कि ऋतिक की बैड हेल्थ की वजह से फिल्म को काफी बार डिले किया गया, लेकिन अब फाइनली ऋतिक की हेल्थ ठीक हो जाने के बाद शूटिंग शुरू हो गई है। एंड हियर इज द फर्स्ट पिक्चर। प्रियंका, रणवीर और अर्जुन आजकल दिल्ली में फिल्म गुंडे का प्रमोशन कर रहे हैं और तीनों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली की है। बता दें कि फिल्म का म्यूजिक ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यशराज बैनर की ये फिल्म ऑडियंस को कितनी पसंद आती है। कटरीना कैफ आजकल सीख रही हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। वेल, Zoom को सोर्सेज से पता चला है कि कटरीना फिल्म फैंटम के लिए हिंदी के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज की डिक्शन क्लासेस भी ले रही हैं। वेल, वी वंडर कि स्टिल कटरीना हिंदी तो ठीक से नहीं बोल पाती, वो उर्दू बोलेंगी तो कैसी लगेंगी। आमिर खान को शटरबग्स ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। वेल, कैप और कैजुअल ड्रेस में आमिर काफी हैंडसम लग रहे थे। बता दें कि आमिर बहुत जल्द अपने शो सत्यमेव जयते का दूसरा पार्ट टीवी में लाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन और यो-यो हनी सिंह नजर आएंगे एक साथ। Zoom को पता चला है कि फिल्म भूतनाथ 2 के लिए यो-यो हनी सिंह ने अमिताभ बच्चन के साथ एक रैप सॉन्ग तैयार किया है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन नहीं नजर आएंगे एक साथ। वेल, मीडिया में रूमर्स थे कि शुजीत सरकार की नेक्स्ट फिल्म में सालों बाद इस कपल को एक साथ देखा जाएगा, लेकिन जब शुजीत से इस खबर पर कॉन्फर्मेशन मांगा गया तो उनका मानना था कि दिस इज जस्ट अ रूमर। अमिताभ और जया उनकी फिल्म में एक साथ नहीं है। सलमान खान ने किए सिद्धि विनायक के दर्शन। वेल, संडे मॉर्निंग को सलमान अपनी को-स्टार डेजी शाह और सिस्टर के साथ गणपति जी के दर्शन करने के लिए सिद्धि विनायक टेम्पल में गए। बता दें कि सलमान की फिल्म जय हो अब 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। रणवीर सिंह को डायरेक्ट करेंगे आदित्य चोपड़ा। वेल, मुंबई के एक न्यूज़पेपर की माने तो आदित्य चोपड़ा की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म में रणवीर सिंह होंगे। वेल, फिलहाल फिल्म की ज्यादा डिटेल्स तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन अगर खबर सच है तो शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह वो लकी एक्टर होंगे जिन्हें आदित्य खुद डायरेक्ट करेंगे। विद्युत जामवाल ने सलमान का भाई बनने से किया इनकार। वेल, सुनने में आया है कि सूरज बरजातिया अपनी नेक्स्ट फिल्म में विद्युत जामवाल को सलमान के यंगर ब्रदर के तौर पर साइन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विद्युत को अप्रोच भी किया, लेकिन विद्युत ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। इस वीकेंड सलमान खान पहुंचे एक मैराथन में। वेल, सलमान ने बच्चों के साथ स्पेंड किया कुछ क्वालिटी टाइम, जिसकी कुछ ग्लिम्प्सेस Zoom आपके लिए लेकर आया है। Salman Khan is always known for his kind heart, and to support noble causes, he's always a step ahead. और recently, वो एक children marathon event पर पहुंचे थे, accompanied with his co-star Daisy Shah. और सलमान ने यहाँ आए बच्चों से रिक्वेस्ट की कि वो slowly चले at the event and support this cause. जी क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि लिटिल हार्ट्स का इवेंट है। मुंबई को दिखाना है कि हमारे लिटिल हार्ट्स कितने बड़े-बड़े हार्ट्स हैं। तो भागम दौड़ी बिल्कुल मत करना, आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से चलना और सबको दिखा के चलना कि हम लोग किस रीजन किस कारण की वजह से चल रहे हैं। अब आप लोग चलो लंबा 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 दूर दूर जाओ और मैं घर जाके सो जाता हूँ। थैंक यू। सलमान ने तो बच्चों को एनकरेज कर खुद यहाँ से भागने की प्लानिंग कर दी, बट सलमान के इस प्रेजेंस ने इस इवेंट को काफी स्पेशल बना दिया।
फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। संजय दत्त ने खार पुलिस स्टेशन में एक बार फिर से की है रिक्वेस्ट अपनी पैरोल एक्सटेंड कराने की। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। संजू बाबा की गांधीगिरी का मुजाहरा इन दिनों कुछ अलग ही तरीके से नजर आ रहा है। पिछले 2 महीनों से संजय दत्त पैरोल पे जेल से बाहर हैं। संजय दत्त 21 दिसंबर पुणे की येरवाड़ा जेल से पहली बार बाहर आए थे। संजय दत्त ने जेल से बाहर आने का कारण बताया था मान्यता दत्त की बीमारी और इसी के बिना पर 1 महीने की पैरोल ले ली। उसके बाद जब उनका 1 महीना खत्म होने वाला था तब पता चला कि संजय ने 1 और महीने के पैरोल के लिए अप्लाई किया है। वो एप्लीकेशन भी मंजूर हो गई और अब जब दूसरा महीना खत्म होने आ रहा है तो सोर्सेज के मुताबिक संजय ने एक और बार मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पैरोल के एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दी है और इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि संजू को एक और बार जेल से बाहर रहने का मौका मिलेगा। वैसे भी संजय दत्त के फिल्मी सफर पर तो फिलहाल एक ब्रेक सा लग गया है क्योंकि डायरेक्टर्स भी उनकी जेल प्रॉब्लम की वजह से अपने प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। द लेटेस्ट एग्जांपल इज राजकुमार हिरानी's फोर्थकमिंग फ्लिक पीके, जिनके लिए संजू को डबिंग करनी है और वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस बार भी मान्यता दत्त की इल हेल्थ की वजह से संजय दत्त के हाथों एक बार और सफलता लग जाएगी या फिर इस बार वो जेल वापस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। विद्या बालन ने कुछ जर्नलिस्ट के साथ किया ब्रंच और उसके साथ साथ अपनी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को किया प्रमोट। इसकी कुछ ग्लिम्सेस देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। विद्या बालन इन दिनों कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं, जिससे उनके आने वाली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स लोगों के दिलों में रजिस्टर ना हो पाए। अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक बार फिर नजर आई विद्या बालन एक ब्रंच के मौके पर। इट वाज अ फीमेल ओनली ब्रंच सेशन ऑन अ संडे आफ्टरनून एंड विद्या वाज द मेन गेस्ट एंड लुक्ड क्वाइट इलेटेड अबाउट दिस होल concept of having a brunch only in the presence of females with no male attention. I think we're going to have a major gossip session with all the girls. Guys, why only females invited? Because you all anyway accuse us of gossiping, so we said we'll keep you all out of it. It's a gossip session on a Sunday afternoon. विद्या ने कहा कि अब ये फीमेल गॉसिप सेशन है तो गॉसिपिंग जोर और शोर से होगी एंड द बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी मैरिज एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। शादी के साइड इफेक्ट्स से ही शुरुआत होगी और खत्म भी वही होगी बात। बीच में बहुत और कुछ बात करेंगे। विद्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शादी का अपना ही मजा है। ये तो वो लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बट वन थिंग दैट गेट्स एवरी रिलेशनशिप गोइंग इज लव। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि शादी के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। ये यू नो रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। इफ यू आर इन लव देन यू फाइंड द साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव। If you're not, then God help you. So the main purpose was the marriage effects which Vidya showered by making her presence felt. वैसे भी विद्या को इस बात की खबर काफी अच्छी तरह है कि उनकी पिछली फिल्म फ्लॉप होने के बाद इस बार अपनी फिल्म को लोगों के दिलों में दर्ज कराने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। इस वीकेंड कंगना रनौत पहुंची रेस कोर्स और यहाँ कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर की बात। जरा आप भी सुनिए क्या कहना है कंगना का। After the promos of the film Queen released, critics and fans have a belief that Kangana Ranaut will be spectacular in the film, and everybody is looking forward to the release of this film. आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट एक्सटेंड कर दी गई है, as the directors did not want any box office clashes. Dates भले ही आगे बढ़ा दी गई हों, लेकिन Kangana Ranaut is leaving no stone unturned when it comes to promoting her film. Recently, Kangana नजर आई एक Derby event के मौके पर. Kangana looked stunning in her black and silver sequin dress, and her queen headgear was one of the main USP of her ensemble. And on this occasion, she spoke about her high-end fashion quotient. Well, I won't say it's very difficult, but it's nice to do it sometimes. और कभी-कभी we don't get to wear these every day. तो जब डाबी के लिए आते हैं तो it's a nice change. कंगना ने बताया कि फिल्म Queen has a lot of emotions, drama, love, and till date this will be Kangana's most cherished role of all times. Queen एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरी आज तक की सबसे फेवरेट फिल्म है और in terms of the film overall और परफॉर्मेंस तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है और हम लोग इसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं तो आई होप लोगों को भी अच्छी लगे। कंगना ने कहा कि फिल्म के साथ साथ फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है और वो इस फिल्म की रूह है एंड शी फील्स रियली हैप्पी दैट द म्यूजिक इज गेटिंग सो पॉपुलर दैट इट इज हेल्पिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ द फिल्म। अमित ने इतना अच्छा काम किया है और उनके गाने ऑलरेडी बहुत पॉपुलर रहते हैं यंगस्टर्स में और वही हो रहा है तो आई थिंक ये तो होता है कि अगर गाने किसी फिल्म के चलते हैं तो फिल्म की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो फिल्म के लिए बहुत अच्छा
अच्छा है, गाने चल रहे हैं। So Kangna looks all excited and elated for the film, and her gestures are also telling us the same. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होगा, ये तो जल्द ही मालूम चल जाएगा. As of now, we wish her all the best for Queen. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब बात बिग बी की। अमिताभ बच्चन ने किया एक स्पेशल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन और यहाँ अमिताभ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए, जरा आप भी देखिए। इंडस्ट्री के महानायक ने जब किसी भी चीज के लिए पहल की है, उसकी आवाज दूर दराज तक गूंजी है और लोगों ने हमेशा उनकी आवाज की गहराई को समझा है। बिग बी एक और नेक काम से जुड़ते हुए नजर आए हैं जब हाल ही में उन्होंने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। इस हॉस्पिटल में बच्चों के प्रीमेच्योर बर्थ और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का इलाज किया जाएगा, जिसके लिए एक एलीट लाइन ऑफ डॉक्टर्स की सूची बनाई गई है जो इसका प्रॉपर इलाज करेंगे। बिग बी इस मौके पर काफी खुश दिखाई दिए और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे कामों में वो हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहेंगे। सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो गई है और बनाई गई है छोटे बच्चों के लिए जिनका जीने की कोई निशानी नहीं थी। प्रीमेच्योर बर्थ्स होते हैं उनके और इतने छोटे और इतने कम वजन से पैदा होते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड टीम डॉक्टर्स की यहाँ पर मिल करके उनको जीवित रखती है, उनके साथ लड़ती है और जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। मैं सूर्या हॉस्पिटल को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और इस तरह के नेक काम में कभी भी यदि हमारी आवश्यकता पड़ी हमारी आवाज़ की या चेहरे की तो अवश्य उसमें मैं शामिल। बच्चन साहब ने इस मौके पर कहा कि उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है इंडियन डॉक्टर्स पर, क्योंकि उनके फिल्मी सफर में उन्हें कई बार चोटें लगी हैं और हर बार उनका ट्रीटमेंट इंडियन डॉक्टर्स ने ही किया है एंड दे हैव कैरीड आउट देयर ड्यूटीज रियली वेल। As I said earlier, have been the victim of many injuries and many hospitalizations, and I've had to put my body to severe tests and rigorous treatment. But the one thing that I was very proud of and very sure of was that I wanted my treatment to be done by doctors here in India and not abroad. So Mr. Bachchan said it right and praised all the people related to this cause. इसका असर गहरा ही होना है क्योंकि जहां मिस्टर बच्चन हो वहां रुकावट आती नहीं है। And so we also wish all the doctors all the best for this new venture. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. इस फ्राइडे रिलीज हुई मच अवेटेड फिल्म हंसी तो फंसी और ऑडियंस का रिएक्शन थिएटर्स में देखने के लिए खुद पहुंचे फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म हंसी तो फंसी के लिए ऑडियंस का रिएक्शन देखने पहुंचे सिद्धार्थ। थिएटर में आए फैंस के साथ सिद्धार्थ ने क्लिक करवाए पिक्चर्स। फिल्म के पॉजिटिव रिस्पांस को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फ्राइडे रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म हंसी तो फंसी और फिल्म का रिएक्शन थिएटर्स में देखने के लिए पहुंचे खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा। फील्स वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रही है, लोग फिर से देख रहे हैं। आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म की कॉमेडी है, इस किस्म का ह्यूमर। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द राइटर एंड डायरेक्टर विनिल मैथ्यू हमारे साथ हैं। नहीं तो आई थिंक लोगों को अलग लग रहा है, स्टाइल डिफरेंट लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, भाई लोग आए यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने के लिए, लोग काफ़ी खुश हैं। रिपीट वैल्यू भी है और कपल्स के लिए भी काफ़ी कुछ है, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है। सिद्धार्थ, लोगों को आपकी फिल्म में कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग्स काफी ज्यादा पसंद आ रही है, सो क्या आपको नहीं लगता कि इट्स अ बेंचमार्क? कॉमिक टाइमिंग तो आई थिंक वो हैट्स ऑफ टू विनिल अगेन, इन्होंने जो डायरेक्ट किया हमें, इनकी सेंसिबिलिटी है, इनकी कॉमेडी, इनके अगर एड्स देखेंगे आप तो उसमें सेम सेंसिबिलिटी है, हमने बस उस पिक्चर में यूज़ किया उसको। तो लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छी बात है। बेंचमार्क सेट करना बहुत अलग बात है। आई थिंक एज लॉन्ग एज लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है और फिर से देख रहे हैं, वो अच्छी बात है। एनीवे सिद्धार्थ, ये बताइए कि आपके बॉलीवुड फैंस का फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है? वी मीन आलिया, वरुण एंड एवरीबॉडी एल्स। सो फार आलिया, आदित्य, श्रद्धा, इन सब ने देखी है, जिनको मिला था तो वो काफ़ी स्वीट थे, उन्होंने टेक्स्ट भी किया मुझे। आलिया तो ऑनलाइन भी, ट्विटर पर भी काफ़ी खुश थी पिक्चर से। तो सो फार गुड रिस्पॉन्स। दे वर क्वाइट सरप्राइज आल्सो, दे आल्सो एंजॉयड इट लाइक एन ऑडियंस।
वरुण अभी तक नहीं देखी, वरुण देखने वाला है अभी, बहुत जल्द उसको देखूंगा मैं, पूछूंगा उससे कैसी लगी उसको। Well, वरुण ने फिल्म नहीं देखी, so is there any feeling of competition between you guys? I know he was very sweet, हमने बात करी, उसने वो मिस कर गया, उसको स्क्रीनिंग के लिए नहीं आ पाया वो, बट यही हम कह रहे थे कि हमारे बीच में अगर आपको लगता है ऐसा कोई कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तीनों बहुत क्लोज हैं, we wish each other really lot of luck and success. Anyway, we hope कि आप लोग फ्रेंड्स ही रहे और आपकी ये फिल्म हर फ्रेंड सर्कल को पसंद आए। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीवी एक्सप्रेस में। इस वीकेंड चीची भैया यानी कि गोविंदा पहुंचे एक म्यूजिक लॉन्च पर और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस म्यूजिक लॉन्च की सारी अपडेट्स। सबके प्यारे, सबके चहीते गोविंदा यानी कि चीची बहुत दिनों के बाद ही सही लेकिन मीडिया के आगे सामने आए। मौका था एक म्यूजिक लॉन्च का जहां गोविंदा ने चीफ गेस्ट का रोल प्ले किया। गोविंदा इस मौके पर खुलकर बोलते हुए नजर आए और इतने भावुक हो गए कि अपने शब्दों को शायरी का नाम दे डाला। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी जा नहीं सकता, वो पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता। When we asked about his very good friend Sanjay Dutt and his yet another parole extension, उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन वो भी politically correct answer। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा टेक्निकल है और हम जितने जो सिनेमा वर्ग के लोग हैं वो हरदम यही चाहेंगे कि कभी गलत नहीं हो, अच्छा ही हो, और अच्छाई में हम लोगों का दिल कहाँ है वो सबको जितने हैं लोग सब ये मालूम है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गलत नहीं हो और अच्छा हो। फिलहाल तो गोविंदा का जवाब घुमाने फिराने वाला हो, चाहे वो उनके फिल्मी सफर के बारे में हो या फिर उनके दोस्तों की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। All he wants to do now is to stay in good books of everyone. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं और अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कंप्लीट शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीवी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि कहीं निकल न जाए पीवी एक्सप्रेस। The real reason why Anurag Kashyap chose to speak to the media is that Huma Qureshi came to him crying that why aren't you speaking up about the news that keeps coming in the papers about Huma being the reason for the separation. And फिर Huma ने अनुराग से agree करते हुए कहा कि जब कल की मीडिया में अपनी रिलेशनशिप को लेकर खुलकर सामने आ रही हैं, then he should also speak. डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ काम करने का असर कुछ खास ही होता है, इसलिए स्टार्स ऑलवेज वांट टू वर्क विद हिम वेदर इट्स रणबीर और दीपिका। इम्तियाज अली के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जताई है हाईवे गर्ल आलिया भट्ट ने, जिनका ये कहना है that she has not removed इम्तियाज from her list and she wants to work with him again. लगता है अब मुन्ना भाई यानी संजू बाबा का जेल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। संजय दत्त has sent a request to खार पुलिस स्टेशन for extension of his parole on the grounds of मान्यता दत्ता's ill health. संजय कुछ समय से जेल से बाहर हैं और अपनी पत्नी मान्यता दत्त के अनवेल होने का फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो संजय दत्त ही दिखाई दे रहे हैं। नए वरुण धवन ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी, that time he looked up to Ranbir and wanted to be like him in the limelight, especially in terms of female power, and he wanted to be like a Casanova. But now Varun seems to have changed his mind and doesn't want to be in this avatar. He now says that he's very sweet and simple, and also his leading ladies Ileana and Nargis also say the same about him. Recently, एक अवार्ड सेरेमनी के इवेंट में नजर आई दीपिका पादुकोण के तेवर बदले नजर आए। दीपिका पादुकोण avoided questions when asked that Anushka has said that she's not friends with you. Deepika got annoyed and said we are not here on any chat show and we should concentrate on the awards. अभिनेता सलमान खान नजर आए चिल्ड्रन मैराथन के मौके पर where he flagged the race. इस मौके पर सलमान की को-स्टार डेजी शाह भी नजर आई। सलमान की सिस्टर अर्पिता और उनके करीबी दोस्त डीनो मोरिया भी नजर आए। बिग बी नजर आए एक हॉस्पिटल इनॉग्रेशन के मौके पर। He visited different departments and he spoke on his health. बिग बी ने कहा मैं जब बीमार था तब मैंने अपना ट्रीटमेंट इंडियन डॉक्टर से करवाया था and I really don't know why people want to go out of the country for their treatment. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जिनकी फिल्म हंसी तो फंसी को ठीक-ठाक रिएक्शंस मिल रहे हैं and his acting ability has also been appreciated in the film looks ecstatic. Siddharth also visited in some theaters just to notice the audience's reaction.
Salman's super hit film Bodyguard will now have a sequel. Earlier, Salman wasn't ready for it, but sources के मुताबिक Atul and Alvira convinced him of taking the story further. The director will be replaced though, and the film will go on the floors very soon. The two megastars will come together and will share the screen space together. Salman Khan and Hrithik Roshan are to act in a 4D film. A Pune-based production company which has the backing from politicians is all set to cast the superstars together for India's first 4D Bollywood historical film. Well, आज का Bollywood dose इतना ही. But don't worry, we'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.